qualitative study before? No? No experienced? Okay. So I did my thesis and I did qualitative along with quantitative research, and I've used Atlas TI in my research, and it is a very good software and very easy to understand software, and I'll make sure that you also learn and agree with me at the last of this FDP. So starting with the introducing what qualitative research is all about. So, qualitative research is basically when we cannot quantify the data collection. Okay, so basically, qualitative study is all about experiences, attitudes. It could be a video in form of a video also, in kind of a interview also, but that is unstructured one. There's no structured type of questions being asked in this interview. So I will be discussing what qualitative research is all about, and discussing various types of qualitative research, and then we'll move forward to the data analysis of the qualitative research. So please allow me to share my screen so I can Yes, ma'am, sure. yeah. Okay, so discussing little bit about qualitative research. So I hope you all are interested in qualitative research. That is why I think all of you have come. So any basic idea regarding the qualitative research you have, like what type of qualitative research and what anything, please be interactive. Yes, please. Is anybody there? Yes, please. Yes, ma'am. Thank you so much. So, regarding the qualitative research, if we talk about like qualitative research, so basically it is very different from quantitative research. Of course, it cannot quantify simply. जो आपसे आई थिंक निशा मैम ने भी डिस्कस किया था, ऑर्डिनल कार्डिनल है ना, तो कार्डिनल आर दोस थिंग व्हिच कैन बी काउंटेड, बट ऑर्डिनल यू कैन सिंपली रैंक देम. ठीक है ना? व्हाट इज योर फेवरेट फूड? यू कैन नॉट से दैट ईटिंग चपाती एंड ईटिंग राइस गिव मी 10 kg of satisfaction, right? We can only rank that first preference is rice and second preference is chapati. ठीक है ना? तो qualitative research is more of like that which you cannot express in like counting in quantifiable terms. ठीक है ना? तो qualitative research की अगर हम बात करें तो basically when we want to explore like some phenomena, some experience you want to share, but it is in exploratory nature, which is not already being explored, as in which may be experienced by some of you, but not explored in a way that it does not like have that much review of literature in terms of we want to find out the causes of information overload. Information overload is a overload which you like feel bombarded with so much information nowadays online especially, so you get confused, and what you do with that you don't know. So this is what that we need to identify the causes. What are the antecedents? Antecedents mean causes which are affecting my information overload, how I get so much packed with the knowledge that I cannot process it simply. So this is a phenomena of information overload which I am experiencing, but I cannot
tell you in a quantifiable form, but I can do it in a qualitative research. So basically qualitative research explore some things, understand the meaning of individuals experiences, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करके ऊपर उन पे रिसर्च लगा के उनको एनालाइज किस तरीके से करके हम अपनी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, हम अपनी रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं. दैट इज ऑल अबाउट क्वालिटेटिव रिसर्च. सो क्वालिटेटिव रिसर्च involves emerging questions and procedures. So typically जो qualitative research होती है वो participants के ही एटमॉस्फेयर में होती है, उसको इस तरीके से बात की जाती है, इस तरीके से उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है that they don't know that they are giving like some data to some researcher, but they are actually discussing their problem, they are just narrating their story. So it is like very in natural setting it is done. So data analysis then inductively build from particulars to general theme. That means what? That it uses the approach of inductive theory, like from the general terms we get to the the themes, the dimensions. Okay, so when we do qualitative research, we just discuss in the form of interview, telling people about our experiences, and from that experiences those interviews will be put in the software, and accordingly the analysis will be done. On the basis of the quotations, the codes are being made, then from those codes themes are to be made, and from those themes actually dimensions come out. All right, so this is what? This is inductive approach. And researcher making interpretation, and accordingly researcher का काम ही analyze करके क्या करना है, उसको interpret करना in a way which is useful to all. Right? So अगर हम बात करें qualitative research की, so it is not confined to only like some particular area, उसका scope बहुत ज़्यादा है, even in psychology, consumer behavior, ठीक है ना, anthropology and what else, ठीक है, सब जगह जहाँ पे भी humans involved है, जहाँ पे भी emotions, attitudes, behavior involved है, वहाँ पे हमारा qualitative research बहुत ज़्यादा useful होता है. ओके, सो हमारा क्या है कि जो हमारी इवन डेटा भी हमारा जो कलेक्ट होता है, दैट कुड बी इन अ फॉर्म ऑफ इंटरव्यू, दैट कुड बी इन अ फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ, वीडियो और एनीथिंग लाइक वो उसमें रिपोर्ट भी जो बनती है, दैट इज ऑल्सो वेरी इन लाइक वेरी मच इन flexible style. So engage in the form of inquiry support way of looking at research, जो honor करता है inductive style को and focus करता है individual meaning and experiences को. Okay, so and it also understands the complexity of a situation. Am I clear? Yes, ma'am. So this is all about our qualitative research. So moving forward, so वही मैंने आपको बताया कि ये natural setting में होती है, इसके लिए हमें कहीं पे उनसे डेटा मतलब structured questionnaire लेके जाने की जरूरत नहीं होती, ये किस तरीके से natural environment में ही होती है. Even जो हमारी types of research अभी हम करेंगे, so जो हमारी ethnography है वो culture को understand करने के लिए होती है, तो researcher उन लोगों के साथ रहना भी शुरू कर देता है जिन लोगों के culture के बारे में उसको learn करना होता है. सो इट इज लाइक इतना नेचुरल सेटिंग्स में हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, ठीक है ना. तो पार्टिसिपेंट का पर्सपेक्टिव लिया जाता है, उसकी कंसेप्ट, उसकी ओपिनियन, एक्सपीरियंसेस, बिहेवियर, एटीट्यूड्स एंड everything will be considered, and it plays as a part of data for the qualitative research. It is the process of data collection. It is called as data only in qualitative research. Then obviously it is non-numerical data. नंबर्स में नहीं होता है. मैंने आपको बताया क्या क्या एग्जाम्पल है. ये टेक्स्ट हो सकता है, वर्बल हो सकता है, विजुअल हो सकता है. इवन व्हेन आई हैव कंडक्टेड क्वालिटेटिव स्टडी, तो मैंने कंसेंट लिया. कंसेंट जरूरी है फ्रॉम दी पार्टिसिपेंट जो है, ठीक है, उससे कंसेंट लेके दैट आई एम रिकॉर्डिंग दिस कॉन्वर्सेशन एंड देन आई हैव ट्रांसक्राइब दैट interview, and then I further did my analysis. So it is non-numerical data. Then researcher की immersion बहुत जरूरी है. researcher इतना भी immerse ना हो जाए that उसकी reflexivity उस पे
उसके रिस्पोंडेंट्स पे आने लग जाए, ठीक है ना। मतलब रिसर्चर को एक अनबायस्ड अप्रोच रखनी जरूरी होती है, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है कि जो रिसर्चर है वही इतना ज्यादा जो है फेमिलियर हो जाता है सिचुएशंस में कि वो उसकी रिफ्लेक्सिविटी आने लगती है, मतलब उस का भी जो है एक रिफ्लेक्शन आने लगती है ऑन हिज रिसर्च। तो उसको क्या है कि उसको थोड़ा सा इमोशनली आउट रहना पड़ता है टू डू अ अनबायस्ड research. ओके, सो मूविंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च बहुत तरीके की होती है। फर्स्ट आई हैव डिस्कस्ड एथनोग्राफी। एथनोग्राफी में क्या है, जब हम किसी के कल्चर के बारे में जानते हैं, उनका उस तरह की एटीट्यूड क्यों है, कल्चर में क्या है, कैसे है, जो भी हम ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड जो है हम उसका समझते हैं, दैट कम्स अंडर एथनोग्राफी. Then is the grounded theory. Grounded theory is something which is a strategy of inquiry in which the researcher drives a general or abstract theory of process, action, or interaction grounded in the views of participant. As in, उनको वो भी सिर्फ अपनी स्टोरी बता रहे हैं, ठीक है ना। ग्राउंडेड थ्योरी, जैसे सपोज अगर मैं किसी से डिस्कस करती हूँ कि हैव यू एक्सपीरियंस्ड इंफॉर्मेशन ओवरलोड एवर, कि आपका कभी हुआ है कि आप लैपटॉप लेकर बैठे सर्च करने अबाउट some product and you just shut down your laptop and आपने कहा कि मुझे नहीं करना, it's too much information coming. That is what, that is something which is a general talk, but how I can how I can attract the data from that, that is what, that is a grounded theory, ठीक है ना. So it is like it involves using multiple stages of data collection and then refinement and everything goes that way. Then is the case study. Obviously all of you might know what case studies are. So case studies are the actual situation जिनकी derivation होती है कि किस तरीके से researcher explore करता है उस program, event या activity को, and उस पे हम उस वो case study बन जाता है for the further studies. Then phenomenological research, it's also or some phenomena you might have experienced, ठीक है ना. जैसे अगर हम बात करें कि फेस्टिवल्स के ड्यूरिंग बहुत ज्यादा मार्केट्स में रश होता है, that is what, that's also a phenomena. We all have seen that phenomena, right? So that is what, that is a phenomena. And if I am like keen to search around those things, तो मैं वो क्या कर सकती हूँ, उस पर फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च कर सकती हूँ, राइट. देन इज द नरेटिव रिसर्च. नरेटिव अगेन स्टोरी नरेशन जैसे होती है. नरेटिव रिसर्च में भी क्या है, इट्स अ स्ट्रैटेजी ऑफ इंक्वायरी जहां पे रिसर्चर स्टडी करते हैं लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल एंड आस्क वन और मोर इंडिविजुअल टू लाइक टू टेल स्टोरीज, लाइक वो अपनी लाइफ स्टोरीज बताते हैं एंड सिंपली उसमें से क्या है हमें अपना पार्ट पता चलता है. सो बेसिकली ये वाली जो रिसर्च है ये थोड़े सेंसिटिव एरियाज में भी बहुत ज्यादा एक्ट करती है. जैसे कि अगर हम बात करें कि जैसे पुअर पीपल हैं, ठीक है, उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इफ वी वांट टू डिस्कस दैट, ठीक है, कि क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें क्या है हम नैरेटिव रिसर्च कर सकते हैं, जस्ट आस्किंग देयर लाइफ स्टोरीज, व्हाट स्ट्रगल्स दे हैव बीन थ्रू, और वो सारा, तो वो दैट बिकम्स अ नैरेटिव रिसर्च. यस, am I clear to all? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. thank you. So the inductive logic behind this qualitative study is that researcher gathers the information. It could be in form of interviews or observations or simply taking interviews, focus groups, like small people of small group of people, and they ask certain things, and उसमें से क्या है कि वो focus group interview बनता है, like all people agrees to that and सब अपनी अपनी inputs देते हैं. And in depth interviews होते हैं, like एक ही person को मैं face to face बैठ के उससे बात कर रही हूँ, ठीक है, उसकी मतलब बातों में से बातें मैं questions put कर रही हूँ, वो answer कर रहा है. That is also what in depth interview, which is a technique for data collection in qualitative research. Or simply I'm observing, ठीक है ना, that is also a part of my data collection in qualitative study. Then researcher ask open-ended questions from the participants. अगर वो questionnaires मतलब questionnaire के form में भी अगर वो करता है तो वो क्या करता है कि open-ended रखता है, ठीक है ना. There is no scale कि आपको 1 to 5 के scale में rate करना है, no, nothing like that.
उसमें क्या है, ओपन एंडेड रखा जाएगा. द रिसर्चर में आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट एंड सिंपली छोड़ा जाएगा, चाहे 5 मिनट ले चाहे 10 मिनट ले, पार्टिसिपेंट जितना भी टाइम ले वो अपनी सारी बात बताएगा, एंड दैट वुड बी एन ओपन एंडेड क्वेश्चंस. देन रिसर्चर एनालाइज करता है जो उसने ऑब्वियसली जो रिकॉर्ड किया, अगर वो रिटन फॉर्म में था तो वो सिंपली ट्रांसक्राइब कर लेगा उसको. अदरवाइज जो अगर वॉइस नोट्स लिए हैं या ऑडियो रिकॉर्ड किए तो उसको भी ट्रांसक्राइब करके अपना फर्दर वो एनालाइज करता है. तो रिसर्चर एनालाइज करता है डेटा टू फॉर्म थीम्स और कैटेगरीज. अल्टीमेटली हमको करना क्या है, हम जो भी फाइंड आउट करना चाहते हैं, जो भी चीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसमें से जो भी हमने कोटेशंस बनी हमारी, एज इन जिसने भी जो भी हमें इंटरव्यू दिया उसमें से कोटेशंस बनी, उसमें से कोडिंग की जाती है. उन कोड्स को फर्दर थीम्स में डाला जाता है एंड देन थीम्स बिकम्स द डायमेंशंस. तो मैं आपको बताऊंगी दैट इज द इंडक्टिव लॉजिक ऑफ द रिसर्चर इन क्वालिटेटिव स्टडी. सो रिसर्चर वही करता है कि लुक्स फॉर ब्रॉड पैटर्न्स, जनरलाइजेशंस और थ्योरीज फ्रॉम दोज थीम्स एंड कैटेगरीज, एंड अल्टीमेटली रिसर्चर पोज करता है वो जनरलाइजेशन और थ्योरी फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस. और अगर उसको उस वे में कोई भी लिटरेचर मिलती है तो वो लिटरेचर के साथ सपोर्ट करके अपनी जनरलाइजेशंस या अपनी इंटरप्रिटेशन उसको लिखता है. ठीक है ना. सो दिस इज द बेसिक थिंग जो हमारी qualitative research में follow होती है. So if I talk about a particular method we follow in qualitative research, that is JOIA methodology. ठीक है, इसमें यही होता है कि हम किस तरीके से, क्या है, सिस्टमैटिक अप्रोच है डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू कंसेप्ट. व्हेन समथिंग इज न्यू कंसेप्ट, हमने उसको एक्सप्लोर किया, उसकी आर्टिकुलेशन की ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी, एंड उसमें क्या होता है, हम फर्स्ट फेज में, ये 3 फेजेस में होता है. फर्स्ट ऑर्डर टर्म्स बनाई हमने जिसको मैं कोड्स बोल रही हूँ. सेकेंड ऑर्डर थीम्स बनाए, जो थीम्स बने उन कोड की अगर हम ग्रुपिंग करते रहे तो वो फर्दर थीम्स बन गए. थीम्स के बाद उन थीम्स को और अगर हम नैरो डाउन करेंगे तो हम किस पे आ जाते हैं, एग्रीगेट डायमेंशन पर आ जाते हैं. सो सेकेंड फेज में वही किया हमने. फर्स्ट ऑर्डर की जो हमने एनालिसिस करके कोड्स निकाले थे, ठीक है ना, उनको हमने फर्दर और जो है नैरो डाउन किया एंड वो थीम्स बनकर आए. एंड अल्टीमेटली जो हमारे सेकेंड ऑर्डर एनालिसिस था, ठीक है, जो हमारा सेकेंड ऑर्डर में थीम्स थे वो हमारी एग्रीगेट डायमेंशंस बन गए. सो मैंने आपके लिए यहाँ पे एक रखा है. सपोज मैंने जो फाइंड आउट किए थे एंटीसीडेंट्स, माय स्क्रीन इज विजिबल? यस मैम. सो इस तरह से मैंने फाइंड आउट किया था, जैसे मैंने फाइंड आउट किया था एंटीसीडेंट्स ऑफ परसीव्ड इंफॉर्मेशन ओवरलोड. सो ये मेरे कोड्स थे कि कॉग्निटिव कैपेसिटी कैसी है, हमारी लिमिटेड है, इंफॉर्मेशन स्किल, सर्च स्किल कैसा है, कंसंट्रेशन लेवल कैसा है, पर्सनालिटी टाइप कैसा है. ठीक है ना. इन सब बहुत सारे कोड्स बने. इन कोड्स के बेसिस पे मैंने फर्दर थीम्स बनाए थे, सेकेंड ऑर्डर थीम्स, जिसमें कॉग्निटिव कैपेसिटी, इंफॉर्मेशन सर्च स्किल, पर्सनल कॉन्स्ट्रेंट, पर्सनालिटी टाइप, टाइम कांस्टेंट, और फिर इनको और नैरो डाउन करने के लिए मैंने डायमेंशंस बनी जो कि इंडिविजुअल इंट्रिंसिक फैक्टर्स कहलाए. तो और नैरो डाउन होता चला गया एंड थोड़ा जो भी मुझे लिटरेचर मिला वो भी इसमें सपोर्ट करती हुई था. बिकॉज अल्टीमेटली जो क्वालिटेटिव स्टडी रहती है दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द रिसर्चर. अब मेरी क्या इंटरप्रिटेशन है उस डेटा से वो डिफरेंट हो सकती है आपकी इंटरप्रिटेशन फ्रॉम दैट particular data. Are you understanding? यस मैम. Okay, so moving forward, अब क्या है कि यही सब चीजें हमने करनी है अपनी एटलिस्ट टीआई में. मैंने आपको ये सब इसीलिए बताया so that you must be knowing कि हमें एक्चुअली करना क्या है. So this is the agenda of this particular session. So हमें क्या है, अब मैंने आपके लिए यहाँ पे एटलिस्ट टीआई में सर्च करके सिंपली आप फ्री ट्रायल भी जो है ले सकते हैं. तो सिंपली एटलिस्ट टीआई सर्च किया गूगल पे एंड दिस इज देयर इज अ फ्री ट्रायल. सो फ्री ट्रायल पे आप क्लिक करके आप ये 5 days के लिए आप ऑपरेट कर सकते हैं. सो ये आपको मिल जाता है. ठीक है ना. ट्राई एटलिस्ट टीआई फॉर फ्री. ये यहाँ पर सिंपली आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है. मैंने ऑलरेडी ये ट्रायल पैक लिया हुआ है इसलिए आई हैव द लाइसेंस. ठीक है ना. मैंने ट्रायल पैक लिया हुआ है
तो ये यहाँ पे सिंपल आप लेंगे, आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे, उसमें आपके ईमेल आईडी पे कोड आएगा एंड अल्टीमेटली यू कैन हैव दिस Atlas TI. So this is open Atlas TI. So my Atlas TI has already been opened. So it is like that only. Is it fine? सब इजीली, बहुत इजीली जो है ये कर सकते हैं डाउनलोड. सो इफ यू गाइज वांट टू डाउनलोड तो आप साथ साथ भी कर सकते हैं. एंड इफ यू गाइज वांट कि ठीक है अभी आप, ऑब्वियसली ये रिकॉर्ड होगा, सेशन रिकॉर्ड नहीं हुआ स्नेहा शायद. मैम ऑन है रिकॉर्डिंग. ओके, सो ये रिकॉर्डेड सेशन है तो आप सिंपली तब भी कर सकते हैं. तो स्टार्टिंग विद द हमें किस तरीके से करना है, दिस इज द इंटरफेस ऑफ Atlas TI. ठीक है ना. तो हमें क्या करना है, हमें न्यू प्रोजेक्ट से हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो प्रोजेक्ट का नाम सपोज हम रखते हैं कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड ही रखते हैं. ठीक है ना. एंड क्रिएट. Okay, so this is the information overload which I have created just now. अब इसमें क्या है कि हमें किस तरीके से जो है हमें आगे मूव करना है. सो सिंपली हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, एक मिनट, होम, यस. सो you can see the here in the left कि information overload जो मैंने नया प्रोजेक्ट बनाया वहां पे 0 डॉक्यूमेंट्स है, 0 कोड्स है, नो मेमोज, नेटवर्क्स, डॉक्यूमेंट ग्रुप्स, कोड ग्रुप्स, मेमो ग्रुप्स, नेटवर्क ग्रुप्स एंड सो ऑन. ठीक है ना. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ऐड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन. और मैंने आपको बताया क्वालिटेटिव रिसर्च में हमें क्या करना है कि जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी नहीं कि वो एक इंटरव्यू के फॉर्म में टेक्स्ट ही हो, वो कोई इमेज भी हो सकती है और कोई ऑडियो भी हो सकती है एंड कोई वीडियो भी हो सकती है सिंपली. ठीक है ना. तो हम यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट्स करेंगे. तो हमने यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ऐड फाइल, सिंपली मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे अपना रखा हुआ है. Wait a second. Yes. Okay, I have these interviews here. So I can select all. So from 10, I can add more documents. Nine. So all the documents have been added. जो भी मैंने इंटरव्यूज कंडक्ट किए थे, ठीक है, वो सब मैंने अब अपने डॉक्यूमेंट्स में कर लिया है. अब फर्दर हम क्या करेंगे, इसमें हमें क्या करना है, पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं. ठीक है ना. तो हमें क्या है, हमारा ऐड डॉक्यूमेंट था जिसके अंदर नॉट ओनली द लाइक टेक्स्ट फॉर्म में, बट यू कैन ऐड various documents, you can add linked videos, audios. ठीक है ना. और वो सब हम कंटेंट ऐड कर सकते हैं इसमें. ठीक है. तो क्या है कि अब जब हमने डॉक्यूमेंट्स बना लिए हैं तो हम सिंपली यहाँ पे जब सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये जो हमारा ट्रायंगल दिख रहा है इसमें इसको जो है एंटर, मतलब इसको टच करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे हमारे सारे कौन कौन सा हमने जो है टेक्स्ट लिया है वो सब आ जाएगा. एंड अल्टीमेटली हम इसके कोड्स देखें तो अभी हमने इसकी कोई भी कोडिंग नहीं की है, बट हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो सिंपली वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट हमारा खुल जाएगा. ठीक है ना.
अभी तक कोई डाउट, कोई क्वेरी? प्लीज आस्क, प्लीज फील फ्री टू आस्क एनीथिंग. यस प्लीज. आपको ये दिख रहा है ना सॉफ्टवेयर सबको? Yes, ma'am. It's visible. ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. सो सिंपली, ma'am. ओके, सो सिंपली इफ आई आस्क लाइक कि किस तरह से कस्टमर इन ऑनलाइन एनवायरनमेंट मस्ट बी विजिलेंट, तो कस्टमर इन ऑनलाइन एनवायरनमेंट तो विजिलेंट रहना चाहिए. विजिलेंट में अब हम यहाँ पे क्या है, सिंपली राइट क्लिक करके जो भी हमारा कोटेशंस आई, जो भी हमने इंटरव्यूज कंडक्ट किए, उसमें से हमने क्या करना है, अब जो हमारा जितना भी लाइक टेक्स्ट है उसमें हमने कोड्स अप्लाई करते हैं. ठीक है ना, तो हम सिंपली यहाँ पे कोड अप्लाई कर सकते हैं विजिलेंस. ठीक है, बाय एडिंग दिस एंड व्हाट एल्स. ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर हम इसको पूरे का सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे हम सेंटेंस से कर सकते हैं, चाहे हम पूरा का पूरा पैराग्राफ कर सकते हैं. ओके, तो पैराग्राफ में अब यहाँ पे क्या है, ही मस्ट बी फ्री फ्रॉम नॉइज डिस्ट्रैक्शन व्हाइल सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन. मतलब उसको क्या होना चाहिए, नॉइज भी हमारा कोड बन सकता है, नॉइज या सिंपली हम डिस्ट्रैक्शन लिख सकते हैं. ठीक है ना, कि डिस्ट्रैक्शन से वो फ्री होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए. तो दैट इज ऑल्सो अ कोड फ्रॉम दिस. उसके बाद हम क्या निकाल रहे हैं, एज अ वेबसाइट इंटरफेस मस्ट बी एंगेजिंग. जो हमारी वेबसाइट इंटरफेस है मतलब एंगेजिंग होनी चाहिए. जैसे हमारा सेशन इंटरैक्टिव होना चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं हो रहा है इंटरैक्टिव. तो एंगेजमेंट प्रॉपर होनी चाहिए. ठीक है ना, सो हमने ये भी कोड ऐड कर दिया. इसमें जितने भी हम कोड ऐड कर रहे हैं वो सब यहाँ पे ऐड हो रहे हैं. ठीक है ना, सो सिंपली ठीक है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस स्टेटमेंट से मैंने क्या निकाला कि डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए, विजिलेंट होना चाहिए, एंगेजमेंट होना चाहिए. इसी तरीके से हम पूरा जो है स्टडी करते हैं, उसके बाद हम इसमें से कोडिंग करते हैं. सो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन मस्ट बी एडिक्वेट. तो जो हमारा अमाउंट है इसमें भी हम कोड्स अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है ना, कि कैसा होना चाहिए. अब ये हमारे कोड्स यहाँ पे लिस्ट हो रहे हैं. कैन यू सी फ्रॉम हियर कि ये कोड्स हमारे लिस्ट हो रहे हैं. तो हमारा क्या है कि इंफॉर्मेशन क्वांटिटी एप्रोप्रिएट होनी चाहिए. ठीक है, सो वी हैव एडेड दिस कोड एज वेल. देन और क्या लग रहा है आपको, और क्या ऐड कर सकते हैं हम. ठीक है, इस तरीके से हम फर्दर कोड करते हैं. एंड यू कैन सी हियर हमने एक इंटरव्यू में अपने 4 कोड्स बना लिए हैं. ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे देखें सिंपली, ठीक है, तो हमारे ये 4 कोड्स निकल आए हैं. डिस्ट्रैक्शन फ्री, एंगेजमेंट, इंफॉर्मेशन क्वांटिटी, विजिलेंस. इज इट क्लियर, एम आई क्लियर टिल नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो अब क्या है, हमने डॉक्यूमेंट्स जितने भी डाले उसमें से हमने कोड बना लिए. अब इन कोड को भी फर्दर जो है क्या कर सकते हैं, हम इन कोड्स को हम ग्रुप कर सकते हैं. ठीक है ना, सिंपली डिस्ट्रैक्शन एंड एंगेजमेंट के लिए मैं एक ग्रुप बना देती हूँ. ठीक है, तो अब इसमें क्या है, न्यू कैटेगरी कोड फ्रॉम सिलेक्शन. अब इसमें क्या किया मैंने, ये कैटेगरी कोड बना दिया कि एंगेजिंग सपोज. ठीक है ना, तो अब ये क्या है, एंगेजिंग में ये 2 कोड्स नीचे आ गए. ठीक है ना, ये सब पार्ट्स बन गए बेसिकली इसके, कि एंगेजिंग में डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए और एंगेजमेंट पूरा होना चाहिए. इस तरीके से मैं आगे फर्दर कोड्स बना सकती हूँ. ठीक है ना, तो अब क्या है कि अगर हम ये फाइल में उतने कोड्स आपको नहीं मिलेंगे, हम साइमल्टेनियसली दूसरी फाइल में भी देख सकते हैं. तो जो मेरी पहले की है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसमें क्या है कि मैं सारा आपको बता देती हूँ कि हमने यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट्स किया, उसके बाद हमने कोडिंग किया. ठीक है, कोडिंग के बाद हम मेमोज भी बना सकते हैं. अब मेमोज बेसिकली क्या होते हैं, मेमोज नोट्स होते हैं जो कि हम जिससे भी रिलेटेड कुछ भी मेमो में ऐड कर सकते हैं. ठीक है, कि हमें क्या ऐड करना है अपने मेमोज में. सो
किस तरीके से मैं आगे फर्दर अपने, जैसे सपोज न्यू में किया मैंने, मेमो बनाना है मुझे, ठीक है, तो मेमो का नाम मैंने रख दिया एंटीसीडेंट्स, ठीक है। अब जरूरी नहीं होता कि हम जो चाह रहे हैं वही सब डेटा आया है, ठीक है ना। हमने तो बहुत सारी क्वालिटेटिव रिसर्च में हमने बहुत सारी चीजें पूछी, बहुत सारी बातें करी, बट उसमें से कितना हमको रेलेवेंट है दैट मैटर्स, ठीक है ना। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम कुछ और ही चीज एक्सप्लोर कर लेते हैं जो हमने सोची भी नहीं होती। सो बेसिकली ये क्या है, एडिंग मेमो, क्रिएट मेमो। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि मेमोज बना सकते हैं। इस मेमो में मैं लिख सकती हूँ जैसे एंगेजमेंट, तो एंगेजमेंट के बारे में लिख सकती हूँ दैट एंगेजमेंट हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट component for the participants, ठीक है। एंड मतलब अकॉर्डिंगली मैं कुछ भी यहाँ पे अपने मेमो जो है वो बना सकती हूँ, सो दैट मैं जब एनालाइज करूंगी फर्दर तो मुझे याद रहेगा कि मैंने ये चीजें ऐड करनी है या किस चीज को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। अगर हम डेमो यहाँ डॉक्यूमेंट ग्रुप्स की बात करें तो अभी तक हमारे क्या है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स के ग्रुप्स नहीं बने हैं, अभी हमने सिंपल ऐड किया है, ठीक है। आई थिंक ये ट्रायल वर्जन में पता नहीं ऐड होंगे, सेव, नो प्रॉब्लम। ओके, सो अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, टूल्स की डिफरेंट डिफरेंट ये क्या दिख रहे हैं हमको, तो यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट्स ऐड किए, उसके बाद यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स ग्रुप, तो हमारे डॉक्यूमेंट्स जितने आए हैं अभी, ठीक है ना, तो हमारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सारे लिस्टेड हैं, वो दोनों तरह से आता है, चाहे आप लेफ्ट से उठा लें चाहे आप यहाँ पे ऊपर उठा लें, ठीक है। अब हम कोटेशन यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, क्योंकि जो जो कोटेशन हमारी बनी है हमने सिर्फ एक ही इंटरव्यू में से अपने कोड्स फाइंड आउट किए थे, तो ये क्या कोटेशन है, जो हमारा कोड है वो हमें ले जाएगा कि क्या कोटेशन थी। सो बेसिकली ये रिसर्च में बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि एक्चुअली हम वो कोड किसने किया था, किसने क्या कहा था, तो आप सिंपली यहाँ से असेस कर सकते हैं कि क्या किसकी कोटेशन थी। सिंपली यहाँ पे टच करेंगे आप तो ये ओपन हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है ना। वो वहां पे पूरा डॉक्यूमेंट खुल के आपको पता लग जाएगा कि दिस वाज द कोटेशन, इसमें से हमने ये कोडिंग की है। एंड अल्टीमेटली जो हमारे कोड्स बने, ठीक है ना, वो हमारे कोड्स बने जैसे एंगेजिंग, इंफॉर्मेशन क्वांटिटी, और यहाँ पे भी जब आप ट्राइंगल को यहाँ मार्क करते हैं तो उसमें और सब कोड्स आ जाते हैं आपके। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, सो कोड्स के बाद हमने एक मेमो भी बनाया, मेमो जो हमारी रिमाइंडर है, एक तरह से हमें ही बताता है कि हमने क्या किस चीज का ख्याल रखता है। एंड अल्टीमेटली आपके नेटवर्क्स, तो नेटवर्क्स अभी हम इसमें करेंगे तो आपको पता चलेगा, आगे फर्दर नेटवर्क एनालिसिस होगा। अभी उसमें हमें कोड्स बनाने जरूरी हैं पहले, उसके लिए, उसके बाद बाकी की चीजें असेस होंगी, ठीक है ना। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट में अपना जो पहले वाला है वो ओपन करती हूँ। जो मेरा ये वाला है इसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स एडेड हैं, कोड्स बने हुए हैं, ओके। सो यही मेरे सारे कोड्स हैं जिसमें मैंने ग्रुप्स भी बनाए हुए हैं कोड्स के, ठीक है, सॉरी डॉक्यूमेंट ग्रुप्स भी बनाए हुए हैं, एज इन अकॉर्डिंग टू द दीज पार्टिसिपेंट्स आई हैव आल्सो इंक्वायर्ड अबाउट देयर डेमोग्राफिक्स, ठीक है ना, कौन कैसा बंदा था, कौन किस एज ग्रुप का था, जेंडर क्या था, ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन, वो मेरे क्या बन गए, डॉक्यूमेंट ग्रुप्स बन गए एक तरह से, कि जिसमें मैंने सारा ये किया। तो ये मैंने किस तरह से किया, आई विल शो यू, ठीक है ना। इसमें किस तरह से हमारे
जो डॉक्यूमेंट्स थे, ये हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे डॉक्यूमेंट्स आ गए, उसके हिसाब से हमने जितनी कोडिंग की, ठीक है। तो फिर हमारे ये डॉक्यूमेंट ग्रुप्स आ गए ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक्स, ठीक है, कि कितना किस तरीके से किया ये मैं अभी आपको बताती हूँ। अभी फर्दर मूव करते हैं हम सर्च एंड कोड में। तो हम बेसिकली अभी क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ कोडिंग पे ही ध्यान दे रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि कोड किस तरीके से, एक तो सिंपली हम कोटेशन से खुद से कोड कर सकते हैं, दूसरा हम कैसे कर सकते हैं सर्च, हम सिंपली टेक्स्ट सर्च भी कर सकते हैं। सपोज ये क्या हो रहा है, एटलीस्ट ये ठीक है ना। हमने ये PIO वाला प्रोजेक्ट उठाया था, हम यहाँ पे सर्च एंड कोड काम कर रहे थे, ठीक है ना। सो हम टेक्स्ट सर्च कैसे कर सकते हैं, सिंपली फ्रॉम द इंटरव्यूज वी हैव कंडक्टेड एंड पुट हियर एज डॉक्यूमेंट्स, उसमें से हम, आई डोंट नो ये क्यों नहीं वर्क कर रहा है, नॉट रिस्पॉन्डिंग। मैम मैं भी एक बार पूरी ऐप क्लियर करके स्टार्ट करूँ, माइट वर्क। क्या कह रहे हो स्नेहा? मैम एक बार पूरी ऐप क्लियर करके स्टार्ट कर सकते हैं। हम्म, ओके, सो फाइनली ये टेक्स्ट सर्च ओपन हुआ है, ठीक है ना। तो अब क्या है कि एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. ओके। सो यहाँ पे क्या है कि हम किस तरह से यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। हमें कौन से डॉक्यूमेंट में एक पर्टिकुलर, आई डोंट नो, इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली।
Yes, now it is working. Okay, so I have selected these first interviews and मैंने सिर्फ मेल एंड फीमेल का जो है सिलेक्ट किया. सो मेल एंड फीमेल, अब इन इंटरव्यूज में से कौन कौन से है, तो वो सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज डेमोग्राफिक्स. ठीक है, एंड आई कंटिन्यू. सो आई सर्च फॉर अ टर्म विच इज information, or simply I put data. Okay, so we have to put like reviews because we want synonyms, but I don't know, it is not showing synonyms. ठीक है ना, तो क्या है यहाँ पे वैसे सिनोनिम्स शो करता है, नो सिनोनिम्स दिखा रहा है. उसमें क्या होता है कि जितने भी रिव्यूज हैं, चाहे वो पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, या रिव्यू जैसा कुछ भी टर्म है, कोई स्टेटमेंट है, कुछ भी, वो सबको लेता एंड वो शो करता रिजल्ट. ठीक है ना, तो उस तरीके से हमने जितनी भी इन्फ्लेक्टेड टर्म्स थी वो भी रिव्यू से रिलेटेड उठाई, और वी गेट टू नो कि रिव्यूज किस तरीके के हैं. वी हैव सर्च द टेक्स्ट. ओके, सो ये हमें बता रहा है कि रिव्यूज किस किसने बोला. पार्टिसिपेंट वन ने कहाँ कहाँ पे रिव्यूज, जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए हैं उसमें वो मुझे सर्च करके बता रहा है. ये सिंपली टेक्स्ट सर्च है. ठीक है ना, तो किस किस पर्सन ने कब कब यूज किया, एंड अकॉर्डिंगली आई कैन मेक कोड फ्रॉम इट. ठीक है ना, अब जैसे रिव्यूज का है तो यहाँ पे क्या है कि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, वहां पे इस कंटेक्स्ट में ये यूज हुआ. देन कंफ्लिक्टिंग रिव्यूज एंड रेटिंग्स, वो भी हम ऐड कर रहे हैं. तो क्या हो रहा है, मेरे कोड्स आप देखोगे ना यहाँ पे इंक्रीज होंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं और कोडिंग कर रही हूँ. ठीक है ना, तो यहाँ पे जितने भी मुझे ये सजेशंस दे रहा है, तो सिंपली वहां पे मैं ऐड करती जा रही हूँ. जैसे कॉन्फ्लिक्टिंग रिव्यूज, तो ये मैं क्या ऑलरेडी मैं इसको ऐड कर चुकी हूँ. ठीक है ना, तो दिस इज अ टाइप जहां पे मैं टेक्स्ट सर्च कर सकती हूँ, कौन सी वर्ड का किस किस पार्टिसिपेंट ने क्या वो चीज बोली है, तो वो मेरा क्या बन जाता है, टेक्स्ट सर्च, सिंपल. ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा हमारा इसमें ये नेम एंटिटी रिकॉग्निशन. आई जस्ट होप इट वर्क्स स्मूथली. ओके, सो अब क्या है, जैसे मैंने पार्टिसिपेंट सपोज मैं 8, not responding again. यस, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन. तो एंटिटी वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक पर्सन है. ठीक है, वो कोई सिटी है, क्या है, तो उसकी एंटिटी क्या है वो भी मुझे पता चल सकती है. जैसे मैं इस हमारे इंटरव्यूज जो हमने कंडक्ट किए उसमें से, ठीक है, हम यहाँ पे सिंपल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करिए, हमने कंटिन्यू किया, एंड वो हमें पैराग्राफ्स में से पर्सन, लोकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, मिसलेनियस, इस तरीके से एंटिटीज भी जो है रिकॉग्नाइज हो सकती हैं विद द हेल्प ऑफ एक्लिस टीआई. सो सिंपली यहाँ पे क्या है कि कॉन्फ्लिक्टिंग जो है वो पर्सन ने यूज किया. ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन है, जो नेम्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन दिखा रहा है, ये किस तरह से दिखा रहा है, ये मैं अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकती हूँ इफ आई वांट टू. जैसे कि कॉन्फ्लिक्टिंग क्या है कि वो एक लोकेशन, मिसलेनियस, इसको मैं मिसलेनियस में रख सकती हूँ. कंपल्सरी क्या है, मिसलेनियस है. जो ये पर्सन ऑर्गेनाइजेशन दिखा रहे हैं ये पर्सन भी हो सकते हैं. तो वो उसी तरीके से ये वर्क करता है कि किस तरह एंटिटीज निकल के आती हैं. सो क्रिएट कोड ग्रुप्स फ्रॉम कैटेगरीज. यहाँ पे ये ऑप्शन भी है कि जो मेरे कैटेगरीज निकल कर आई हैं उनसे मैं इनको मैं सिलेक्ट अगर करती हूँ तो ये मेरे दोनों मिसलेनियस में क्या होगा, मेरे कोड ग्रुप बन जाएगा. ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या मैं शो करती हूँ
जैसे कॉन्फ्लिक्टिंग कंपल्सरी किस किस कोटेशन में आई है वो भी जो है वो मुझे सर्च करके दे रहा है, एंड अकॉर्डिंगली आई कैन अप्लाई कोड्स एज वेल। ठीक है ना, जैसे क्या है कॉन्फ्लिक्टिंग कंपल्सरी, कॉन्फ्लिक्टिंग जो है वो रिव्यूज के केस में है, तो यहाँ पे आई कैन सिलेक्ट, एंड यहाँ पे मैंने अपना ये कोडिंग भी कर दी इसको। ठीक है, तो ये यहाँ पे कोड आ गया, और वो सजेस्ट कर रहा है कि क्या क्या हो सकता है। तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड, क्योंकि जब हमारे कॉन्फ्लिक्टिंग रिव्यूज है तो वो दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग एन ओवरलोड इन माई माइंड। सो यहाँ पे भी वो मुझे बता रहा है कि आप अप्लाई कर सकते हो कोड्स फ्रॉम दिस लिस्ट, एंड वो अकॉर्डिंगली कर रहा है। ठीक है ना, ये सब हमारा ऐप कर रहा है। सो दिस इज ओके। देन इज सेंटिमेंट एनालिसिस। जितने भी मैंने डेटा कलेक्ट किया, जो भी मैंने इंटरव्यूज की कंडक्ट किए, उसमें लोगों का सेंटिमेंट कैसा था वो भी मैं एनालिसिस कर सकती हूँ। वो पॉजिटिव थे, नेगेटिव थे, न्यूट्रल थे, कैसा सेंटिमेंट था टुवर्ड्स, मतलब इन देयर अप्रोच टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर फिनोमिना, व्हाट दे फील। सो मैं सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकती हूँ बाय सिलेक्टिंग माय डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम हियर। ठीक है, so I have taken up to 5 only, so continue। so ये क्या बता रहा है कि पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव तीनों सिलेक्टेड है, तीनों में से अब शो रिजल्ट्स। सो जितने भी मैंने 5 इंटरव्यू कंडक्ट किए उनका क्या है, किस तरीके की अप्रोच थी। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए शो हो रहा है नो कोडिंग अभी तक नहीं हुई है, बट सेंटिमेंट बता रहा है न्यूट्रल था। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है कि सेंटिमेंट न्यूट्रल था। ये सब दिशा के जो स्टेटमेंट्स थी पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट उसका बता रहा है। देन पार्टिसिपेंट उसमें से ही कोटेशंस में से वो सेंटिमेंट्स बता रहे हैं। यहाँ पे उसने कुछ, उस पर्टिकुलर पर्सन ने कुछ नेगेटिव कहा कि दैट व्हाई डज अ कंज्यूमर हु इंटेंड्स टू शॉप यूजिंग एन ऑनलाइन वेबसाइट सडनली डिसाइड टू क्विट, सो दैट इज नेगेटिव। then neutral, negative, and accordingly I can add these sentiments कि कितने पॉजिटिव हैं कितने नेगेटिव हैं, वो मैं जो है निकाल सकती हूँ इसमें से। यहाँ पे 174 पैराग्राफ्स में आए हैं कंटेनिंग सेंटिमेंट्स। दीज सेंटिमेंट्स फ्रॉम द 5 इंटरव्यूज मेरे 174 रिजल्ट्स आए हैं जो कि बता रहे हैं कि किस तरह के सेंटिमेंट्स थे। तो मैं तीनों को ही जो है अप्लाई कर देती हूँ कि सारे ही मेरे, सबको मैं कंसिडर कर रही हूँ एंड कोडिंग विद प्रपोज्ड कोड्स, और मैंने इसको जो है सबको एक्सेप्ट कर लिया कि कौन कितना नेगेटिव था और कौन कितना पॉजिटिव था, उनकी स्टेटमेंट्स कैसे कैसे बता रही थी वो मैंने सब एक्सेप्ट कर लिए, जो भी उसने मुझे कोड्स बना के दिए। एंड अकॉर्डिंगली अब मैंने 5 का किया था। ठीक है, अब मैं इनको डिसेलेक्ट करके और भी जो है पार्टिसिपेंट्स उनका भी निकाल सकती हूँ, एंड अकॉर्डिंगली मैं अपने पूरे डेटा का सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकती हूँ। सो ये मैंने सेंटिमेंट सबके निकाल लिए, और इसका आप देखेंगे यहाँ पे भी जो हमारे कोड ग्रुप्स भी बने हैं उसमें हमारे कोड्स ऐड हो गए होंगे जो सेंटिमेंट का स्पेशली था। देखिए यहाँ पे सेंटिमेंट आपको नजर आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड, ये कोड्स में हमारा, यस मैम, यस मैम। जस्ट अ सेकेंड, ये सेंटिमेंट। ठीक है ना, ये ट्रायंगल स्टेट्स दैट इसके सब पार्ट्स हैं। तो हमारे उन 5 इंटरव्यूज जो हमने सेलेक्ट किए थे उसमें से 55 नेगेटिव स्टेटमेंट्स थी, 99 न्यूट्रल थी और 20 पॉजिटिव थी। तो यहाँ पे मुझे साफ क्लियर पता चल रहा है कि जो न्यूट्रल थी वो 99 है, मतलब कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड को लेके सब लोगों की एक नेगेटिव अप्रोच नहीं है, रादर सम आर टेकिंग इट पॉजिटिवली, दैट जितनी हमें इंफॉर्मेशन आ रही है वो न्यूट्रल वे में है। ठीक है ना, तो लोगों का सेंटिमेंट्स का भी हम एनालिसिस कर सकते हैं फ्रॉम दी डेटा जो हमने इंटरव्यूज किए। अब क्या है हमारे कंसेप्ट्स। ठीक है, तो कंसेप्ट्स भी इसमें किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज हम नेक्स्ट 5 ले लेते हैं, यहाँ पे 6 7 ने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया इसने। ओके, सो हमने यहाँ पे सिर्फ एक
पार्टिसिपेंट लिया एंड अकॉर्डिंगली वो क्या बता रहे हैं कि कौन कौन से कंसेप्ट्स निकल कर आ रहे हैं उस पर्टिकुलर इंटरव्यू से, एज इन वो ब्रांड की बात कर रही है, रेंज की बात कर रहे हैं, डिसीजन की, प्रोडक्ट की, प्राइस की, एंड सिंपली बाय लाइक पुटिंग माय कर्सर ओवर इट, तो वो मुझे पता चल रहा है कि उसने डिस्ट्रैक्शन कितनी बार यूज किया, 1 टाइम। इसमें मैं और ऐड कर सकती हूँ, ठीक है ना, तो वो अकॉर्डिंगली सबका दिखाता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने 5 इंटरव्यूज सिलेक्ट किया, ठीक है। 5 इंटरव्यूज में से ये मेरे क्या निकल कर आए हैं, एक तरह से वर्ड क्लाउड निकल के आया है, एक तरह से उन्होंने किस किस टर्म को कितनी बार यूज किया। जैसे इंफॉर्मेशन 106 टोकन्स है, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन हैज बीन यूज्ड अबाउट फॉर 106 टाइम्स, ठीक है ना। वेबसाइट है, सोर्स है, ठीक है, टाइम है, ये सब चीजें उन पर्टिकुलर इंटरव्यूज में ये वर्ड्स यूज हुए हैं। डिसीजन में 25 टाइम्स डिसीजन यूज हुआ, सर्च 18 टाइम्स, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंगली इसमें मैं और क्या कर सकती हूँ कि ये जो मुझे बता रहे हैं कि ये वर्ड्स यूज हुए हैं, इनमें से मैं इन कोटेशन भी कर सकती हूँ। कैसे? जैसे सपोज वेबसाइट, अगर मेरे को, मैं इसको टच कर रही हूँ, एज इन सिलेक्ट कर रही हूँ, तो वो मुझे दिखा रहा है कि किस किस टर्म, कहाँ कहाँ, कौन सी कोटेशन में ये पर्टिकुलर वेबसाइट वर्ड यूज हुआ था। एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैं, वो मुझे सजेस्टेड कोड्स भी दिखा रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा अगर मैं, हाँ, यहाँ पे किया तो जैसे सेंटिमेंट भी दिखा रहा है कि अगर वो वेबसाइट की बात करिए, कंपनीज वेबसाइट, तो किस कंटेक्स्ट में है उसका सेंटिमेंट भी साथ में पता चल रहा है, क्योंकि हमने सेंटिमेंट एनालिसिस भी किया। तो नेगेटिव है, न्यूट्रल है, ठीक है, किस तरीके का। अगर मैं इंफॉर्मेशन पे टच करती हूँ तो जितनी भी इंफॉर्मेशन वर्ड की कोटेशंस है वो सब आ गई, ठीक है, उसमें कैसा सेंटिमेंट था वो। और यहाँ पे अगर मैं प्लस साइन करती हूँ तो वो कोड भी पर्टिकुलर ऐड हो गया। देखिए देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, 1 मिनट। नाउ इज इट विजिबल? Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि हम कंसेप्ट्स निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड क्लाउड्स, ठीक है। देन इज ओपिनियन माइनिंग। तो ओपिनियन माइनिंग का भी क्या है कि हम किस तरह से ओपिनियन माइनिंग कर सकते हैं, बाय सिलेक्टिंग आर पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स। हम सिंपली उनकी ओपिनियन किस तरीके की थी वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसमें से भी कोड्स बन सकते हैं। सो बेसिकली हम बहुत इन डेप्थ में अपने इंटरव्यूज को, अपने डेटा को समझ सकते हैं, उसमें डिफरेंट पैटर्न निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड इट इज रियली वेरी इजी टू यूज। आप एक बारी ट्रायल वर्जन भी लेंगे तो आप बहुत इजीली ये कर पाएंगे। बस वो थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर रहा है रिस्पॉन्ड। आई डोंट नो कि वो वाईफाई स्लो है कि क्या प्रॉब्लम है, बट मे बी थोड़ा अनलाइसेंस्ड है हमारा सॉफ्टवेयर, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो क्या है कि हमारा यहाँ पे ओपिनियन माइनिंग आ गया। जब हमारे ओपिनियन माइनिंग है तो वो मॉडल्स के फॉर्म में जो है हमको दिखा रहा है कि हिस्टोग्राम्स दिखा रहा है कि किस तरीके से फीलिंग कैसे दिखाया है उसने, कि कंफ्यूज्ड, हाउ, व्हेन। यानी कि हमारी एक इंटरव्यू, जो हमने एक इंटरव्यू लिया, एक ही सिलेक्ट किया हुआ है, उसकी हमें यहाँ पे सारा बता रहा है कि उसने टाइम के लिए वो किस तरह का उसका ओपिनियन है, फील वो कैसा कर रही है, इंफॉर्मेशन कैसी चाहिए, रिलायबल चाहिए। एंड उन्हीं एक इंटरव्यू में से ये हमें डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट्स एक तरह से निकल कर आ रहे हैं, ओपिनियंस, नॉट कंसेप्ट्स, एक्चुअली ओपिनियंस निकल कर आ रही हैं। इफ वी टेक मोर, तो वो क्या है, ऑब्वियस सी बात है कि हम पूरे डेटा का अगर करेंगे इंटरप्रिटेशन, पूरे सबकी निकालेंगे ना, एक पर्टिकुलर पर्सन की तो नहीं, लेकिन हाँ आप एक पर्सन का व्यू पॉइंट जान सकते हैं कि उसकी पर्टिकुलर पर्सन की क्या ओपिनियन है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 2 सिलेक्ट किए, तो उसमें भी क्या है कि वो दोनों क्लब होके उनकी फीलिंग्स, उनकी ओपिनियंस वो पता चल रही हैं। इज इट क्लियर? ओपिनियन माइनिंग। Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन इज वर्ड फ्रीक्वेंसीज। सिंपल कि वर्ड फ्रीक्वेंसीज कैसे, कि कोई पर्सन कितने वर्ड को कितनी बारी इस्तेमाल कर रहा है वो भी हमें ये क्लाउड से पता चल सकता है, ठीक है ना। तो अब मैं सारे सिलेक्ट करती हूँ इसमें।
ठीक है ना, अप टू 10 कर लिए चलो। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मुझे सारा ये वर्ड क्लाउड बन के आया है, और वर्ड क्लाउड आपने जनरली बुक्स में देखा होगा, तो इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप सिंपली अपना डेटा डाल के वर्ड क्लाउड भी निकाल सकते हैं। यस, सो हम क्या कर सकते हैं, इन्होंने एक्सक्लूड किए हुए हैं नंबर्स, सिंगल कैरेक्टर वर्ड्स, हाइफन, अंडरस्कोर्स, ये सब इन्होंने ऑलरेडी एक्सक्लूड किए हुए हैं। अगर हमको नंबर्स चाहिए, हम ये हटा देंगे तो यू कैन सी नंबर्स हियर। ठीक है ना, 12, 11, 18। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं ये सब चीजें टू मेक इट लुक मोर इंफॉर्मेटिव, एंड बाकी के जो स्टॉप वर्ड्स हैं उनको एक्सक्लूड कर देते हैं। तो यहाँ पे एक्सक्लूड क्या क्या किए हुए हैं, हमें हमारे स्टॉप वर्ड्स को एक्सक्लूड किया हुआ है, जैसे अबाउट, अबव, क्योंकि वो जो उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी है, जो भी उन्होंने इंटरव्यूज में कहा है, वो तो हमने सेंटेंसेस की तरह नोट किया है ना। तो जितने भी स्टॉप वर्ड्स हैं उनको हमने हटा दिया है, सो दैट वो हमारे वर्ड क्लाउड में ना दिखाई दे। यस, इज इट फाइन? Yes, ma'am. ओके, सो यहाँ पे मैं और भी चीजें हटा सकती हूँ, जैसे अस है, लेट है, ये सब चीजें, एल जी, ये कोई मतलब नहीं है इन चीज का, तो सिंपल इसको मैं हाइड भी कर सकती हूँ यहाँ पे बाय क्लिकिंग राइट क्लिक। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे, उन्होंने स्टॉप वर्ड तो लगाए हुआ है, बट फिर भी अगर ये शो कर रहा है तो मैं यहाँ पे इसको स्टॉप लिस्ट में भी ऐड कर सकती हूँ, ऐड टू स्टॉप लिस्ट, और वो मेरे वर्ड क्लाउड से चला गया। कैन यू सी इट नाउ? Yes, तो यानी ma'am. कि यहाँ से आपको थीम्स भी पता चलते हैं कि आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया है उसके थीम्स क्या है, ऑनलाइन रिव्यूज, पर्सनल इंफॉर्मेशन, इंडिविजुअल का, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में वो कुछ कह रहा है, ठीक है ना, उनके कॉन्फ्लिक्टिंग क्या है, रिव्यूज है, माइंडसेट है, वेबसाइट्स हैं, कस्टमर्स हैं, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, ये हमारे एक तरह से सर्च एंड कोड में जितनी भी हमारी चीजें थी वो निकल कर आई। एम आई क्लियर टिल नाउ? Yes, ma'am. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, अब क्या है कि हमने ये सब चीजें समझी, सर्च एंड कोड में क्या था। उसके बाद क्या है, हमारा एनालाइज का पार्ट आता है कि हम एनालिसिस किस तरीके से करते हैं अपनी डेटा का। ठीक है ना, तो एनालिसिस में हमारा क्या आता है, एक तो कोअकरेंस एनालिसिस आता है। कोअकरेंस का मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसे अगर सपोज हम जो कोड्स हैं, ठीक है ना, मैं आपको करके दिखाती हूँ यहाँ पे। यस, सो क्या है कि हमारी कोअकरेंस, हमारे दोनों में, मतलब एक साइड हमारे कॉलम कोड्स आ रहे हैं और एक साइड हमारे रो कोड्स आ रहे हैं। मतलब एक साइड अगर हम इन्हें सेलेक्ट करते हैं, सपोज एडवर्टाइजमेंट, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, ब्रांड ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है, ये 3 सेलेक्ट किए, और यहाँ पे हमने क्या सेलेक्ट किया, प्राइस, ठीक है, प्राइवेसी कंसर्न्स, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। तो ये किस तरीके से बनता है हमारा, ये कोअकरेंस है कि, या सिंपल हम इसमें सेंटिमेंट्स लेते हैं, वो ज्यादा क्लियर होएगा। नेगेटिव, न्यूट्रल एंड पॉजिटिव। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं कि सेंटिमेंट्स आ गए, ये वाला टोटल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे सेंटिमेंट्स किस तरह के, इसको टच करोगे ना तो वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि ये नेगेटिव सेंटिमेंट्स है, और उसमें 55 कोटेशंस है। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए यहाँ पे कोअकरेंस, मतलब कि जो नेगेटिव सेंटीमेंट है एडवर्टाइजमेंट के लिए कितना है, 3 है। ठीक है ना, हमने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया, सिर्फ एडवर्टाइज, मतलब 3 लोग के कैसे सेंटिमेंट्स है, नेगेटिव है रिगार्डिंग द एडवर्टाइजमेंट। इफ वी सी यहाँ पे सेंटिमेंट कैसा है, न्यूट्रल है, तो यहाँ पे 3। अगर हम यहाँ पे देखें तो न्यूट्रल कोई भी नहीं आया सेंटिमेंट, यानी कि फिर इसका होगा नहीं कि न्यूट्रल कोई नहीं है एडवर्टाइजमेंट के लिए, या तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सेम हमारा ऑथेंटिसिटी के लिए, और वहां पे अगर हम इसको टच करेंगे तो साथ ही साथ हमारी यहाँ पे कोटेशंस भी आपको दिखेंगी।
ठीक है ना। यहाँ पे कौन से पार्टिसिपेंट 4 ने क्या बोला, उसके हिसाब से उसका सेंटिमेंट कैसा था, कॉन्फ्लिक्टिंग रिव्यूज एंड वो सब कोड्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 थे तो 3 आ रहे हैं, यहाँ पे 2 थे तो 2 दिखा रहा है, यहाँ पे 1 है तो एक ही यहाँ पे शो रहा है। सो दिस इज को अकरेंस कि हम डिफरेंट क्या है कि हम दोनों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ये स्टडी कर सकते हैं कि किस तरीके से को अकरेंस हो रही है ऑफ डिफरेंट कोड्स। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. ओके। सो जब हम कोअकरेंस करते हैं तो इसमें क्या है कि हम यहाँ पे और सिंपल हम टेबल फॉर्म में नहीं, बट हम और भी जो डायग्राम्स हैं या हमारे ग्राफ्स हैं हम उसमें भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे ये क्या दिखा रहा है, ये सेंटिमेंट्स दिखा रहा है, बट इसको हमें कलर डिफरेंट करना चाहिए सो दैट ये डिफरेंट कलर्स में आए। तो हम यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे हम इसको अलग कलर कर सकते हैं, चेंज कलर। एक को मैंने ऑरेंज कर दिया, ठीक है, तो वो एडवर्टाइजमेंट अब आपको ऑरेंज दिखेगी। ठीक है। ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन का कलर मैं चेंज कर देती हूँ फॉर मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये मैंने डार्क ब्लू कर दिया। एंड हमारा तीसरा है ब्रांड ऑल्टरनेटिव। ब्रांड ऑल्टरनेटिव का कलर चेंज करके हमने पिंक रख दिया। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, सैंकी डायग्राम बन रहा है ये कि कितने न्यूट्रल हैं, क्या सेंटीमेंट है, उसके हिसाब से हमने पॉजिटिव किया तो था। अच्छा पॉजिटिव नहीं होगा फिर हमारा, तो जो वो शो कर रहा है उसी के हिसाब से हमारे किस तरह के सेंटिमेंट्स है वो हमें सैंकी डायग्राम में भी शो हो रहा है। हम इसमें बार ग्राफ्स भी देख सकते हैं। ठीक है। तो बार ग्राफ्स में भी क्या है हमारा कि हमारी एडवर्टाइजमेंट, ये पूरा नहीं आ रहा, यस वो हमें ग्राफ भी बना के दिखा देता है। मतलब इन सब चीजों की भी क्या करने की आपको खुद से जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे रखेंगे तो वो आपको ग्राफ भी बना के दिखाएगा टू अंडरस्टैंड कि वो किस तरीके से कनेक्शन क्रिएट कर रहा है। ठीक है। ये हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इफ वी वांट, कि हम इसकी इमेज एक्सपोर्ट कर ले और हम इसकी सेव कर ले और जो हम रिपोर्ट बनाए उसमें हमारी ये इमेज भी डाली जा सकती है। ठीक है ना। तो हमारा क्या है कि ये हमारा कोअकरेंस एनालिसिस था। इसी तरीके से हमारा जो है वो कोड डॉक्यूमेंट एनालिसिस भी कर सकते हैं। जिसमें हमें कोड्स भी नजर आ रहे हैं। ठीक है ना। सर्च डॉक्यूमेंट्स तो क्या है, हम यहाँ पे सिंपली सर्च किया हमने एडवर्टाइजमेंट, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, ब्रांड ऑल्टरनेटिव्स, कॉग्निटिव, कॉम्प्लेक्स, सब 5-6 कोड्स ले लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एंड हम यहाँ पे एज ग्रुप के हिसाब से जो है अपना कोड और डॉक्यूमेंट एनालिसिस भी कर सकते हैं। सो सिंपली ये क्या हमें उसी तरीके से जैसे हमारा को-अकरेंस एनालिसिस था बिटवीन द कोड्स, वो हमें कोड डॉक्यूमेंट का भी जो है वो दिखा सकता है। ठीक है। तो हमारे एडवर्टाइजमेंट्स कितनी है अकॉर्डिंगली कितने एज ग्रुप में, जैसे एज ग्रुप हमारे 20 to 29, 30 to 39 एंड अबव 40, तो वो अकॉर्डिंगली हमें एज ग्रुप में कितने लोग जो है वो अग्री करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पे दिखा रहे हैं। इज इट फाइन? तो यहाँ पे भी आपकी सैंकी आ जाती है डायग्राम, आप बार चार्ट भी दे सकते हैं। ठीक है ना। तो वो डिफरेंट किस कलर को आपने कौन सा कोड किया है वो कलर बार में शो हो रहा है एंड अकॉर्डिंगली यू गेट टू नो कि क्या इंटरप्रिटेशन, मतलब क्या हमारी कितने लोग क्या एज ग्रुप के हैं और वो क्या कर रहे हैं एज एन एडवर्टाइजमेंट, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, ब्रांड ऑल्टरनेटिव, किसको ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सेम हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं जैसे को-अकरेंस में कर सकते थे। Yes, am I clear till now? Yes, ma'am. I had a doubt. Yes, please. Do we have to write age group like manually or the software will do it?
this software can do, but in this case, if we like, just a second. Also, ma'am, if we could see one more time the document, like only one document, Yes. so that the way it is written, like सबका अलग अलग लिखा होगा ना, जैसे participants का. Yes. I'll show you. यहाँ पे तो सब डला हुआ है ना, मैं आपको वो दिखाती हूँ जिसमें हमारा न्यू प्रोजेक्ट में दिखाती हूँ मैं. ठीक है, सपोज ये न्यू प्रोजेक्ट है हमारा. ठीक है, हम यहाँ पे ऐड करते हैं डॉक्यूमेंट. ओनली विल टेक वन. अब यहाँ पे क्या है कि हमें डॉक्यूमेंट तो लोड करना पड़ा. इसी तरीके से हम क्या है जो हम इसके डेमोग्राफिक्स बनाएंगे. सपोज इफ वी आर ओनली स्टडिंग डेमोग्राफिक्स, तो वो हमें मैनुअली ऐड कर सकते हैं, या सिंपली जब आप SPSS में डालते हैं तो वहां पे भी क्या आ जाते हैं, हमारे डेमोग्राफिक्स आ जाते हैं. एंड अल्टीमेटली हम वहां पे सिंपल 1 2 3 4 कोड कर देते हैं. तो वो वाली चीज भी आप सिंपल इसमें, जैसे आपने डॉक्यूमेंट ऐड किया, वहां पे आप सिंपल उसका डेमोग्राफिक भी ऐड कर सकते हैं. यहाँ पे कोड बुक होती है जो सिंपली आपकी एक्सेल शीट से डेटा उठा लेती है. ठीक है ना, एक्सेल एक्सपोर्ट, इसमें ही हमारी यहाँ पे एक्सेल से वो फाइल उठा लेती है डेमोग्राफिक्स की. आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं एंड वो शो कर देता है फिर आपको डिफरेंट, मतलब उसमें फिर आप फर्दर उसको स्टडी कर सकते हैं. Yes, ma'am, got it. Thank you. ओके, any other query? So can we take a 5-minute break and we'll be back by 8:20? Yes, ma'am. Okay, thank you.